Hello, my dear student. I am Professor Harshal Nikam. Welcome you all in third lecture of ONS subject. Dear student, in last lecture we were discussed about the construction of optical fiber cable, and now in this session we will going to discuss about the classification of optical fiber cable. So let's start with our department vision, mission and program educational objective. Here it shows the vision of our electronics and telecommunication department. The vision is to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineer. ये हमारे डिपार्टमेंट का विजन है। मीन्स आप इसको गोल ऑफ डिपार्टमेंट भी बोल सकते हो। तो ये जो विजन यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का, ये आपको बताता है कि जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फील्ड में, वो हमें अचीव करना है, वो भी डिप्लोमा इंजीनियर्स तैयार करके। और इस विजन को अचीव करने के लिए हमने मिशन स्टेटमेंट सेट किया है। तो लेट्स सी द विजन मिशन स्टेटमेंट ऑफ आवर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। हियर I represent the mission of Electronics and Telecommunication Department. The mission is having 5 in number for achieving the vision statement of our department. The very first mission is imparting quality education for to meet society and industry needs. यानी क्वालिटी एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा आपको दिया जाएगा, और वो भी जो सोसाइटी की नीड्स होंगी या फिर इंडस्ट्री की नीड्स होंगी उसके द्वारा। मिशन 2 स्टेटमेंट इज प्रोवाइड इथिकल एंड आउटकम बेस्ड एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट। यानी इथिकल और आउटकम बेस्ड एजुकेशन आपको दिया जाएगा। इनकलकेटिंग क्रिएटिव थिंकिंग थ्रू इनोवेशन एंड को एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अमॉन्ग द स्टूडेंट। आपको क्रिएटिव थिंकिंग इम्प्रूव करने के द्वारा जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ हम अरेंज करेंगे उसके द्वारा हम विजन स्टेटमेंट अचीव कर सकते हैं। फोर्थ मिशन इज इन्हांस द लीडरशिप स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी और हायर एजुकेशन। लीडरशिप स्किल इन्हांस करना या फिर एम्प्लॉयबल आपको बनाना या फिर हायर एजुकेशन के लिए आपको सुटेबल करना, इस तीनों क्वालिटी की द्वारा हम अपना विजन स्टेटमेंट अचीव कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज सीकिंग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे आपका बहुत ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा फोकस करेंगे। सो विद दिस 5 mission statement we can definitely achieve our vision statement that we discussed in previous slide. Now we move on to program educational objectives in next slide. Here this slide shows the program educational objective. Means after completing your diploma, after 2 or 3 years, this program educational objective is achieved whenever you going for in the industry or whenever you going at higher studies. The program educational objective is very first one is PEO1. This PEO1 means program educational objective 1, that represent provide socially responsible environment friendly solution to electronics and telecommunication engineering related broad based problem
adapting professional ethics. Second one is adopt state of the art electronics and telecommunication engineering broad based technologies to work in multidisciplinary work environments. And third one is solve broad based problems individually and as a team member, communicating effectively in the world of work. So through this program educational objective, we can definitely achieve our mission as well as our vision statement. Now, here in this slide shows the course outcome and its program outcome mapping. You know very well about the course outcome, means after completing our two first units, the outcome which we achieved through that first unit, that means it is a course outcome. Okay, and that course outcome is mapped with the program outcome. Here I represent the course outcome, that is interpret the function of various block of optical fiber system. इस पर्टिकुलर फर्स्ट यूनिट में हमें फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के द्वारा पढ़ना है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल भी पढ़ेंगे फाइबर ऑप्टिक के, और पूरे फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन कौन से सोर्सेस या फिर डिटेक्टर यूज़ होते हैं, पूरी ब्लॉक डायग्राम में क्या कौन से सोर्सेस और कौन से डिवाइसेस यूज़ होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ना है. एंड इट्स प्रोग्राम आउटकम मैपिंग इज शोन हियर. Previously, we used 10 number of POs here. You all know very well. Previously, हम 10 number of POs यहाँ पे यूज़ करते थे, लेकिन as per the new guidelines of NBA, now here I mention only 7 number of POs. Means 10 number of POs are clubbed into the 7 number of POs. This course outcome is mapped with the 7 number of POs. So I map this course outcome to the POs, like PO1 is related to the basic and discipline knowledge, so I mapped at a level 3. PO number 2 is mapped at a level 1. PO3 is mapped at a level 3. PO4 is mapped at a level 4. Similarly, PO7, that is based on the lifelong learning, is mapped at a level 1. So please remember here, from today's onwards we are going to map only 7 number of POs here. Okay, so this is all about the course outcome and its PO mapping. Now we move to the our today's topic, that is classification of fiber optic cable. Now here we are going to start our actual today's topic, that is from first unit, fundamental of fiber optic communication. And the topic is topic number 1.3, classification based on modes and index profile. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में लास्ट स्लाइड में देखा था कि फाइबर ऑप्टिक केबल के दो प्रकार से हम केबल को कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी बेस्ड ऑन मोड्स, जिसमें हमने देखा था सिंगल मोड और मल्टी मोड, एंड डिपेंड ऑन इंडेक्स प्रोफाइल, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रोफाइल पे भी हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ सम टुडेज लर्निंग आउट. हियर द लर्निंग आउटकम फॉर आवर टुडेज सेशन इज, means after completing our today's session, the learners will able to list the types of fiber optic cable. Second, define the term step index और multimode fiber, यानी स्टेप इंडेक्स क्या होता है और मल्टीमोड फाइबर क्या होता है, ये आप आज का लेक्चर कंप्लीट होते हुए डिफाइन कर सकते हो. डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ फाइबर केबल, स्टेप इंडेक्स फाइबर, सिंगल मोड या फिर मल्टी मोड या फिर ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर आप डिस्क्राइब कर सकते हो. स्टेट एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फाइबर केबल. स्टेप इंडेक्स फाइबर हो या फिर ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर हो, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और क्या एप्लीकेशन होते हैं, ये आज का लेक्चर खत्म होते ही आप
उसको डिफाइन कर सकते हो. So here the classification of fiber cable, the hierarchical structure is represented as, here the modes of fiber optic cable is categorized into two types, that is multimode and single mode fiber. Multimode is again divided into two types, that is step index fiber and graded index fiber. Now, though on the basis of mode, we are categorized into two modes, that is multimode and single mode. Single mode means only single ray of light can transfer through the optical fiber cable, that is called as a single mode fiber. If a number of mode or a number of light ray signal is transmitted through the optical fiber cable, then we can say that multi-mode fiber. Now here a multi-mode fiber is again categorized into two types, that is step index fiber and graded index fiber. A step index fiber is generally used for a signal can transmit at a longer distance, and the graded index fiber is follows the parabolic nature of transmission through the optical fiber cable. That's why this graded index fiber is used for a shorter distance transmission. So we can see the diagrammatical representation in our next slide. Now here it shows the pictorial view of different types of fiber optical cable. See here it represents the single mode of fiber. This is a optical fiber cable, and through that a light ray signal can transmit. Because we already discussed that this cable, this optical fiber is made up of some glass or silica material, and actually it is having a two interface, that is core and cladding. Okay, so through that core I can transport here a particular light signal and receive at its destination. So this is source. Through that source I can transfer a single light signal and received at a destination. That's why it is called as a single mode of fiber, because we are transmitting only single ray of light, only single. See here, only single light signal can transfer. If we are transmitting a single light of signal, then see here, this is a core and this is a cladding. Then the structure or size of core is very small as compared to this cladding. Okay, why it is small? Because we can transfer only a single signal through that optical fiber. That's why it is called as a single mode of fiber. Next, this is the multi-mode step index fiber. See the multi-mode step index fiber. Why it is multi-mode? Because here I can transmit a three different signal through this optical fiber and received at its destination. The size of core, see here, the size of core is higher than this cable. See, okay, so we can transmit a number of modes of signal through this optical fiber. That's why it is called as a multi-mode step index fiber. Now the multi-mode graded index fiber. Here also we can transfer the multi signal through this optical fiber, and the total internal reflection follows here. See here, follows a parabolic in nature. That's why the signal degradation is possible through this graded index fiber. मतलब सिग्नल की क्वालिटी यहाँ पे लॉस हो सकती है,
एक्चुअली यहाँ पे स्टेप मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में यहाँ से सिग्नल डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा, इसलिए ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बराबर फॉलो कर रहा है। बट यहाँ पे सिग्नल की क्वालिटी डिस्टर्ब हो सकती है, जिसको अपन डिस्पर्शन लॉस बोल सकते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये यहाँ पे पैराबोलिक नेचर फॉलो कर रहा है, यानी टोटल 100% इंटरफेस से, कोर क्लैडिंग इंटरफेस से यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। इसीलिए एज कम्पेयर टू स्टेप इंडेक्स फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की क्वालिटी कम होती है। इसीलिए ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर जनरली शॉर्टर डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। बट मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर या फिर सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, ये दोनों भी जनरली लॉन्गर डिस्टेंस सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इसमें डिस्पर्शन लॉस आता है ड्यू टू इट्स पैराबोलिक रिफ्लेक्शन इन नेचर। दैट्स वाई ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर हम ज़्यादातर शॉर्टर डिस्टेंस के लिए यूज़ किया करते हैं। Now here I represent some important points related to the step index fiber. The very first important point is it is the simplest type of fiber cable, cylindrical in nature with uniform refractive index of core. यानी सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर जिससे अपन सिर्फ एक ही सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं और वो सिलेंड्रिकल इन नेचर में होता है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म होता है। ओके, सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल कैन चेंज एज वी आर गोइंग विथ लॉन्गर डिस्टेंस, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज अ स्टेप इंडेक्स फाइबर। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है कोर और क्लैडिंग के बीच में, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल होता है, वो जैसे जैसे डिस्टेंस हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे वो स्टेप वही चेंज होते रहता है, इसलिए हम उसको स्टेप इंडेक्स फाइबर बोलते हैं। द ऑप्टिकल फाइबर केबल अवेलेबल इन रॉड टाइप एंड कंसिस्टिंग फ्रॉम कोर, क्लैडिंग एंड प्रोटेक्टिव जैकेट। ये हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइबर जो सेकंड लेक्चर में हम पढ़े थे, उसी में मैंने ये पढ़ा था कि ऑप्टिकल फाइबर में एक कोर मीडियम होता है, दूसरा क्लैडिंग, और उसके ऊपर हम प्रोटेक्टिव जैकेट प्रोवाइड करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग द स्ट्रेंथ टू द फाइबर। The core is transparent with refractive index N1 and it is surrounded by transparent cladding with refractive index N2, but in specific ratio, that is N1 is greater than N2। ये भी हमने पढ़े थे। The core is transparent होता है with refractive index N1 and it is surrounded by transparent cladding with refractive index N2, but in specific ratio, that is N1 is always greater than N2। Here in single mode, light is passed in a straight way having diameter up to 50 micrometer of core cladding interface। यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉलो न करते हुए स्ट्रेट वे फॉलो करता है, जिसका कोर का डायमीटर होता है 50 माइक्रोमीटर। इसका एडवांटेज है पल्स रिपीटेशन रेट इज हाई। यस, पल्स रिपीटेशन रेट यानी पल्स बहुत ज़्यादा रिपीटेशन की जो रेट होता है वो हाई होता है एज कंपेयर टू अदर फाइबर। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन ट्रांसमिट, एक ही सिंगल मोड, एक ही सिंगल रे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपन इससे ट्रांसमिट करते हैं एट अ शॉर्ट टाइम। इसका डिसएडवांटेज भी है स्मॉल साइज़। इसका साइज़ आपने चेक, जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था कि उसका कोर का डायमीटर बहुत कम होने के कारण उसका साइज़ भी कैसे होगा, स्मॉल। हैंडलिंग, स्प्लाइसिंग एंड इंटरकनेक्शन इज़ डिफ़िकल्ट। स्प्लाइसिंग मतलब उसको अपन जॉइंट या फिर इंटरकनेक्शन जो भी होता है वो डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। सो दिस इज़ अबाउट द सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स। नेक्स्ट, द मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। मल्टी मोड मतलब
एक से अधिक सिग्नल को ट्रांसमिट करना थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। मल्टी मोड प्रोपोगेशन कैन टेक प्लेस, यस, एक से ज़्यादा सिग्नल को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर केबल। सेकेंड, द मल्टी मोड रिफ्लेक्शन ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग, यस, अगर कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर चेंज होता है तभी एक से अधिक सिग्नल को हम ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा ट्रांसमिट कर सकते हैं। ड्यू टू मल्टीपाथ क्वालिटी ऑफ सिग्नल कैन बी डिग्रेड एट रिसीविंग एंड, अगर एक से अधिक सिग्नल एक ही रेगुलर इंटरवल पे हम ट्रांसमिट कर रहे हैं थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर केबल, देन रिसीविंग एंड पे सिग्नल की क्वालिटी डिस्टर्ब हो सकती है। जैसे कि हमने सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में हमने पढ़ा था कि ओनली एक ही सिग्नल हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसमें रिसीविंग एंड पे बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है क्योंकि उसमें एक ही सिग्नल हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। बट हियर इन मल्टी मोड एक से अधिक अगर सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं तो सिग्नल की क्वालिटी डिस्टर्ब हो सकती है। द कोर डायमीटर इज अप टू 50 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। एक से अधिक अपने को सिग्नल ट्रांसमिट करने हैं तो कोर का डायमीटर ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू सिंगल मोड ऑफ फाइबर, इसलिए इसका डायमीटर रहेगा 50 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रो। इट इज़ इन लार्ज साइज, आप इसको ये भी एडवांटेज भी कंसिडर कर सकते हो कि मल्टी मोड ऑफ फाइबर जिसका साइज़ कैसे होता है ज़्यादा, कंस्ट्रक्शन इज ईजी, और इसका कंस्ट्रक्शन भी ईजी होता है एज कम्पेयर टू सिंगल मोड ऑफ फाइबर बिकॉज कोर की डायमीटर यहाँ पे ज़्यादा है। अब 50 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक अपन कोर की डायमीटर ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर कंसिस्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कोर, यानी इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज डिक्रीजिंग इन अकॉर्डिंग्स विथ लेंथ, जैसे ही मैंने पहले पॉइंट में आपको मेंशन किया था कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में, और वो क्यों नॉन यूनिफॉर्म होता है बिकॉज जैसे जैसे हम इन लेंथ बढ़ाते हैं कम्युनिकेशन की, यानी लेंथ ऑफ द केबल बढ़ाते हैं तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इन अकॉर्डेंस विद द लेंथ डिक्रीज होता है। बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्लैडिंग, बट एक कंडीशन ये है यहाँ पे कि हमेशा कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। क्या एडवांटेज है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के? ड्यू टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मूथ बेंडिंग ऑफ द केबल इज पॉसिबल, यानी हम ऐसे कुछ लोकेशन आएंगे जब हम नेटवर्क इस्टेब्लिश करेंगे फाइबर ऑप्टिक केबल के, तो उस फाइबर ऑप्टिक केबल के द्वारा जब हम नेटवर्क इस्टेब्लिश करेंगे तो बेंडिंग करना हमारे लिए बहुत आसान होगा अगर वो केबल ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर होता है तो, क्योंकि इसमें पैराबोलिक नेचर के द्वारा सिग्नल ट्रांसमिट होता है थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर केबल। इजी स्प्लाइसिंग एंड इंटरकनेक्शन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्प्लाइसिंग, अपन दो केबल को ज्वाइन करने की टेक्निक को स्प्लाइसिंग बोलते हैं, और इंटरकनेक्शन यानी अलग अलग कनेक्शन करने के लिए ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में आसानी होती है। चीपर लाइट सोर्स कैन बी यूज, जो लाइट सोर्स हम ट्रांसमिटिंग एंड पे यूज करने वाले हैं फॉर कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू लाइट सिग्नल, लाइक एलईडी और लेज़र का हम ज़्यादातर यूज करते हैं लाइट सोर्स करके, वो चीपर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द different types of optical fiber that we are discussed in our today's session. After completing our today's session, I can summarize our today's lecture here. You all are able to list the types of fiber optic cable, यानी आज
हमने जो अलग अलग प्रकार के फाइबर ऑप्टिक केबल देखे, जैसे सिंगल मोड हो या फिर मल्टी मोड, देन मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर या फिर सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और क्रेडेड इंडेक्स फाइबर, आप उसको लिस्ट कर सकते हो। डिफाइन द टर्म स्टेप इंडेक्स और मल्टी मोड फाइबर, मल्टी मोड क्या है और स्टेप इंडेक्स क्या है, ये आप डिफाइन कर सकते हो। उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जो भी हमने कंस्ट्रक्शन डायग्राम देखे हैं उसका यूज़ करके। स्टेट एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड अप्लीकेशन ऑफ फाइबर केबल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड अप्लीकेशन ऑफ फाइबर केबल भी आप लिख सकते हो। सो थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज lecture. After completing our today's lecture, in next lecture we will discuss about the optical sources used for optical fiber communication. Thank you so much.